Morning students. Now today we are taking two basic definitions which are left in the previous video, and after this we will discuss numericals. What is elastic after effect? See, what does this state? That so here like we have taken any elastic body और उस पे से अगर हम deforming force remove कर देते हैं तो अगर कोई बॉडी इमीडिएटली अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन नहीं करते हैं, चाहे वो टेम्परेरीली डिले हो, सो दैट टेम्परेरीली डिले वी विल डिस्कस अंडर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. व्हाट डज इट इंडिकेट कि किसी भी बॉडी पे जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया तो उसके अंदर उसमें जो चेंज आने में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने में स्लाइट टाइम लिया, तो दैट इज टेम्परेरी डिले इज स्टडिंग अंडर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. सो व्हाट इज अ स्टेटमेंट? दैट टेम्परेरी delay in regaining original configuration. Temporary delay in regaining original configuration by an elastic body after removal of deforming force. This is called elastic after effect. So you have to just learn this statement. Sometime in 1 mark question this can be asked. Another is elastic fatigue. Fatigue word से समझेंगे इसको. Fatigue यानी tiredness. If a person get tired, so that such kind of behavior we will study as elastic fatigue. So it is a property of an elastic body by virtue of which its behavior become less elastic under the action of repeated alternating force. यानी अगर किसी बॉडी पर बार बार हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑफ एंड ऑन लगाते जा रहे हैं, फिर हम उसकी स्ट्रेचेबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यानी फोर्स हटाया, फोर्स लगाने के बाद तो बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन लेती है. लेकिन अगर एक ही बॉडी को हम बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग हो, वायर हो, रबर हो, अगर उसे स्ट्रेच करते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो अपना इलास्टिक बिहेवियर लूज़ कर देगी. सो दैट इज़ बेसिकली फैटिगनेस. So property of an elastic body by which its behavior become less elastic, यानी उसके बाद बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशंस रहना शुरू हो जाएंगी and it will lose its elastic behavior. Like you can just do it at home. आपके पास कोई स्प्रिंग है गेम में, तो स्प्रिंग को मान लो आप स्ट्रेच करते रहेंगे. शुरू में आप लेके आते हैं कंप्रेस्ड है, लेकिन लगातार जब इसे स्ट्रेच करते रहेंगे तो कुछ के बाद इनकी जो स्पायरल्स हैं दे विल गेट सेपरेटेड. फर्दर अगर ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर देंगे तो इनके बीच का गैप फर्दर इंक्रीज हो जाएगा. सो लगातार फोर्स लगने के बाद इसका बिहेवियर, इसकी इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है. इलास्टिक बिहेवियर माने अपनी ओरिजिनल स्टेट को वापस गेन करना. सो दिस इज़ योर इलास्टिक फैटिग. So now I have introduced these two definitions. So revise these two. In fact, learn these concepts because this can be asked in exam. Now after this we will come to the numerical part. Now a steel wire of length 4.7 meter and cross section area 3 into 10 raised to the power minus 5 meter square stretches by same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross section area 4 into 10 raised to the power minus 5 meter square under a given load. What is the ratio of Young modulus of steel to that of copper? See, we have been given two wires जिसमें extension they are stretching by the same amount. यानी stretching amount दोनों के लिए same है. अब आपको दोनों का ही Young modulus की वैल्यू निकालनी है steel to copper. So see how. So now as the steel wire having length is given to be 4.7 meter and its area of cross section is 3 into 10 raised to the power minus 5 meter square, and another wire that is copper wire having length 3.5 meter and area of cross section is 4 into 10 raised to the power minus 5 meter square. So these are stretched under same load, यानी फोर्स दोनों पर सेम लग रहा है.
तो दोनों में ही जो एक्सटेंशन हो रही है दैट इज़ आइडेंटिकल। तो अब आपको यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकालना है या रेशो निकालना है स्टील टू कॉपर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल एल अपॉन एल। फोर्स सेम है एंड यू कैन सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, फोर्स सेम है, डेल एल सेम है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ वाई एस, दिस इज फोर्स एल अपॉन ए डेल एल। So this is for steel, and for copper this is FL copper, area of copper and extension for copper. If you take its ratio, del LS equal to del, if we have taken like this, so ये देखिए ये दोनों फैक्टर्स भी आइडेंटिकल हो जाएंगे, दोनों में एक्सटेंशन और फोर्स भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या बचेगा, LS अपॉन AS, then this multiplied by you can see AC upon L copper. So now substitute the value, length of steel wire multiplied by area of copper divided by area of copper, this is area of steel multiplied by length of copper. So when you will solve, this ratio comes out to be 1.8. So it is formula based question. Main concept which you have to recall that here force and extension produced is same. Now next numerical, compute elongation of steel and brass wire as shown in the figure. Figure will be shown here. Unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that for brass wire is 1 meter. Diameter of each wire is 0.25 centimeter. And Young modulus for steel and of brass wire has been given. So you have to calculate elongations produced of steel and brass wire. Figure I am just showing you. So here now here as per this figure, here steel wire whose length and the load attached to it that has been shown here. This is steel, this is brass wire. So you have to calculate the extension produced in steel and this brass wire. So what step you should do here? Just recall the basic formula for Young modulus. This is, you can say that here. Now what will be the basic formula? I am just writing the common formula. अब सबसे पहले अगर हम स्टील वायर के अंदर लेते हैं तो स्टील वायर से करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना, यानी कितना लोड अटैच्ड है, लेंथ तो गिवन है, लेंथ ऑफ स्टील वायर इज लेट इट बी L1, दिस इज़ 1.5 मीटर। अब फोर्स कितना होगा, यानी स्टील वायर के नीचे दो वेट्स हैं, वायर का मास हमें कंसीडर नहीं करना है, दिस इज मासलेस, हम दो वेट जो अटैच किए हुए हैं दैट इज़ 4 + 6 × 10, सो इट विल बी 100 न्यूटन. So area of steel wire, this will be pi d² / 4. अब यहाँ डायमीटर ऑफ स्टील वायर गिवन है तो 22/7 × 4, डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये सॉल्व करने पर आ जाती है वैल्यू 4.9 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. तो अब देखिए लोड की वैल्यू गिवन हो गई, लेंथ गिवन है, area we have calculated and Young modulus of steel is given. All values have been known to you. तो del L हम निकाल सकते हैं. तो del L for steel will be FLA × Y. Force is 100, length is 1.5, area is 4.9 10⁻⁻. This is -6 and Young modulus of steel is 2 × 10⁻11. So now this is the just calculation part, and when you will do it, just check your result. The answer comes out to be this one. Just try to solve the calculation part. Now similarly, if we have to calculate the elongation of brass wire, so for that again let 2 suffix for brass, force for this is for steel, for brass I am using 2, L2 upon A2 Y2. आप चाहें तो B और S सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एनी नोटेशन यू कैन यूज़. अब फोर्स कितना होगा, F2 होगा, क्योंकि ब्रास के नीचे कितना वेट आएंगे, सिर्फ 6 किलोग्राम, इस वायर के अंदर 6 किलोग्राम, तो सिर्फ इसका ही फोर्स कंट्रीब्यूट करेगा. तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 10, दिस इज़ 60 न्यूटन. लेंथ L2 इज़ गिवन टू बी योर, दिस इज़ 1 मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी सेम,
दोनों ही वायर का एरिया सेम है. सो हेयर इट विल बी 4.9 10⁻⁻⁶ meter square. So further, if you will substitute all the given parameters, its value comes out to be 1.3 10⁻⁻⁴ meter. So check the answers. It's your work. You can check the answers. You can tell the answers on the spaces. So again, this is formula based question. Now next numerical. A copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of same diameter 3 millimeter. These are connected end to end, and this is a composite wire. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 millimeter. यानी दोनों की combined elongation आपको दी हुई है. Calculate the load applied. यानी कितना फोर्स हमने इस composite wire पे लगाया, that we have to calculate. Young modulus for steel as well as copper wire that has been given here. So what you have to do, just you have to work as per the formula and the given parameters. So now a copper wire, that is length of copper wire is 2.2 millimeter and of steel wire is 1.6 meter. Diameter, common diameter is 3 millimeter. So we will write it in terms of meter. Millimeter में है तो मीटर की टर्म्स में लिखेंगे. This is 3 into 10⁻⁻³ meter. Now here, as total extension produced in copper plus steel wire, this is given to be 0.7 millimeter. Further, I will just write it in terms of meter. Now the formula for Young modulus, this is y upon a del L upon L. अब एरिया का अगर हम डायमीटर की टर्म्स में फॉर्मूला लिखें तो दिस विल बी पाई d square by 4. सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट लोड अप्लाइड. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, इसके अकॉर्डिंगली हमें एक्सटेंशन के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको करने के लिए हम लोड अप्लाइड इज़ ऑल्सो अननोन टू अस. तो पहले हम निकाल लेते हैं डेल एल, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्टील एंड कॉपर वायर. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लाइक दिस. अब इसको दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे क्योंकि लोड हमारा कॉमन अप्लाई किया हुआ है दोनों के लिए. एफ, दिस इज लेंथ ऑफ स्टील वायर, एरिया दैट विल ऑल्सो बी कॉमन, यंग मॉडुलस फॉर स्टील. ऐसे ही लेंथ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन कॉपर वायर विल बी एफ एल कॉपर डिवाइड बाय एरिया वाई ऑफ कॉपर. नाउ ratio of these two, let me divide these two equation. Why we are doing it? Because here in terms of each other we can calculate the extension produced in copper and steel wire. So YL copper area y copper multiplied by area y steel force length of steel. तो common factor is cancelled. यहाँ आगे values, अब इन values को हम put करते हैं. extension to calculate extension, length of copper wire is 2.2. स्टील वायर का यंग मॉडुलस की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 2 into 10⁻11. यंग मॉडुलस फॉर कॉपर वायर इट इज़ गिवन टू बी 1.1 10⁻11 and length of steel wire is this is given to be 1.6. So now when you will solve it, this comes out to be 2.5. Just do the calculation, you will get the same answer. Now from here you can see length of copper wire comes out to be 2.5 times length extension, basically not length, extension in copper wire is 2.5 times extension in the steel wire. Now we will use the data which is given, that extension produced in steel and copper wire is 0.7 10⁻³ meter. अब ये वैल्यू पुट करेंगे 2.5 लेंथ ऑफ स्टील वायर प्लस डेल एल एस 0.7 10⁻³ so it is 3.5 del ls, this is 0.7 10⁻³ extension in steel wire is, this will come out to be 0.7 divided by 3.5, this will be 2 point this is your 2 this will be comes out to be, this will be your 0.7 by 3.5, so it will be 1 by 2. Yes, it will be 1 by 5, it will be 0.2 into 10⁻³ यानी कह सकते हो 0.22 millimeter. तो extension in steel wire is this one. What will be the extension in copper wire? 0.2 into 2.5.
तो multiplied by 10⁻³ also. So when you will solve it, it will be 5.5 into 10⁻³ or you can see 0.5 millimeter. So total extension यहीं से हो गया. और अगर आप यहाँ से नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्टील वायर की एक्सटेंशन निकाल ली है, कॉपर वायर के निकालेंगे तो दिस माइनस स्टील, तो डायरेक्टली 0.5 आ सकते हैं. तो एनी फॉर्मूला यू कैन यूज़. अब आपको क्या निकालना है, बट यू हैव टू कैलकुलेट दिस इज़ ओनली फोर्स, कितना लोड अप्लाई किया हुआ है. तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सटेंशन भी आ गई पर्टिकुलर किसी एक वायर के लिए. तो आपके पास यंग मॉड्यूलस भी गिवन है, एरिया भी नोन है, लेंथ भी गिवन है. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू इन द फार्मूला. आप चाहे स्टील के फॉर्मूले में यूज़ कीजिए या कॉपर की वैल्यूज यूज़ करके करिए. देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस लोड अप्लाइड. सो हेयर फोर्स विल बी, दिस इज वाई, दिस विल बी योर वाई ए डेल एल अपॉन एल. तो अगर मैं कॉपर के लिए सब्स्टिट्यूट कर दूँ, एरिया तो सब जगह कॉमन ही है, किसी भी वायर का यूज़ कर लो. यहाँ सारी आप कॉपर की वैल्यू यूज़ करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 1.8 10⁻², यानी अप्रॉक्सीमेटली 180 न्यूटन आ जाएगा अगर इस डेसिमल को कंप्लीट हटाते हैं. सो दिस वे यू कैन सी द न्यूमेरिकल. इन न्यूमेरिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा स्टेप यूज़ करना है, क्या गिवन पैरामीटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ आपको जो मेन पॉइंट गिवन था टोटल एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, तो हमने पहले इनको रेशियो फॉर्म में निकाला, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एक्सटेंशंस निकाल के फिर हमने लोड निकाला है. Now let me take one or two conceptual problems. Which one is more elastic? More elastic, that is rubber or steel? As we know that Young modulus is given by force per unit area extension divided by length. अब अगर दोनों वायर, दोनों रबर और स्टील मटेरियल के लिए आप इन दोनों का रेशो लेंगे, देन यू विल सी दैट अंडर द सेम एरिया सेम लोड अप्लाइड. सो हेयर वाई फॉर रबर, स्टील टू रबर, अगर दोनों का ही मैं रेशो ले लूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स L by A del L. This is for steel I am taking, and for rubber like this. कॉमन फैक्टर विल कैंसिल. तो अब क्या बचा यहाँ पर, दिस इज़, अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट भी अगर हम लें, क्योंकि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन नहीं है, तो अगर हम दोनों की लेंथ भी इक्वल कर लें, अब अगर लेंथ भी इक्वल कर लें तो यहाँ से ये रिजल्ट आया दैट रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस फॉर रब स्टील टू कॉपर, दिस विल कम आउट टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. We know that young modulus is inversely proportional to extension produced. अब हमें पता है यहाँ से कि एक्सटेंशन किस में ज़्यादा होती है, अगर आप रबर लें और स्टील लें. नॉर्मली एक्सटेंशन अगर आप रबर को जितने फोर्स से स्ट्रेच करते हैं, स्टील को भी उसी फोर्स से स्ट्रेच करते हैं, तो दोनों में एक्सटेंशन बराबर नहीं होगी, रबर में ज़्यादा होगी. तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रबर विल बी मोर एंड दैट ऑफ स्टील. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से क्लियरली आपको विजिबल है दैट यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील इज़ मोर देन दैट ऑफ रबर. सी, समझने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, बट यू कैन सी कि फ्रॉम देयर जिसकी यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा इलास्टिक है. लेकिन हम क्या सोचते हैं कि रबर को ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, बट एक्चुअली इन दिस फिजिक्स टर्म यू कैन सी फ्रॉम दिस वैल्यू दैट स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर. रीज़न बिकॉज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रबर इज़ मोर एज कम्पेयर टू स्टील. Similarly, there can be the question why spring is made up of steel, not of copper. Again, this can be asked only on the basis that Young modulus for steel is more as compared to copper. As we have discussed it in numerical part, in steel its value is 2 into 10 raised to the power 11 Pascal, and for copper it is 1.1 into 10 raised to the power 11 पास्कल. हालांकि हमें ये वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक पॉइंट शुड बी क्लियर दैट स्टील हैविंग मोर यंग मॉड्यूलस देन द कॉपर वायर. नाउ one last question I am taking, that is again such conceptual question using the formula. A wire stretches by certain amount under a load. If
load and radius are increased to 4 times. Find stretch caused in wire. वायर स्ट्रेचेस बाय सर्टेन अमाउंट, यानी कोई वायर है, इसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं लोड के अंडर. अब ये बोला है कि लोड को, यानी इस फोर्स को और इस वायर की रेडियस को 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया. तो मान लो इनिशियल फोर्स है F और वायर का रेडियस है R. अब हमारे पास जब हमने चेंज कर दिया तो F डैश हो गया 4 टाइम्स F एंड रेडियस इज़ ऑल्सो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस. तो यंग मॉड्यूलस का फार्मूला, सिंपली फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दिस इज़ लाइक दिस. तो यहाँ से एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, हमें स्ट्रेच निकालना है वायर का, तो एक्सटेंशन का फार्मूला क्या होगा, FL पाई R स्क्वेयर Y, राइट. अब इसी के बेसिस पर हम डेल एल डैश पे निकाल लेते हैं. जब फोर्स और रेडियस दोनों को हमने 4 टाइम्स कर दिया है तो डेल एल डैश हो जाएगा F डैश, लेंथ सेम, radius is also 4 times, young modulus is same. तो f dash is 4FL पाई r डैश की जगह इसकी वैल्यू 4 टाइम्स हमने पुट कर दी 4r स्क्वेयर y, यानी ये हो जाएगा 4FL बाई 16 पाई r स्क्वेयर y. सो दिस इज़ डेल एल डैश. अब ये डेल एल डैश हो गया, ये आपके पास डेल एल है. अब इन दोनों में ही देखिए FL पाई R स्क्वेयर वाई कॉमन है, यानी ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे. तो अगर आप निकालते हैं डेल एल डैश अपॉन एल, यानी दिस डेल एल डैश अपॉन डेल एल, यानी दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो ये सारा फैक्टर कैंसिल, हमारे पास बचा 1/4. इट मीन्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन दैट केस विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एक्सटेंशन. दिस इज़ नॉट 4 टाइम्स, दिस इज़ 1/4. हाँ जी, यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल extension. So that's all for today. Today we have done the numericals on the basis of this we can say modulus of elasticity, and conceptual point also discussed. So practice similar more numericals to get more clarity. Thank you. Have a nice day.